محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی. روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں. دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے. تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے. آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر. رشوت خوری کے خاتمے کے لیے اے سی بی متحرک. بودن راکیش سی آئی کو رشوت لیتے ہوئے ڈی سی پی اے سی بی نے در دبوچا. ترگو کے نام پر کسانوں کو نہ لوٹا جائے. دھان خریدی کے دوران کسانوں کو غیر ضروری ہراساں کرنے پر سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. ضلع کلکٹر نارائن ریڈی. عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر پہلی بار شہر میں میگا بلڈ ڈونیشن کیمپ کا کامیاب انعقاد. نوجوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے دیا خون کا عطیہ. سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یوم پیدائش تقریب کا ضلع میں پرجوش اہتمام. ضلع کلکٹر نارائن ریڈی، سی پی کارتکیہ و دیگر نے کیا تقریب کا اہتمام. حیدرآباد سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے جمعیت کا اہم اقدام. متاثرین کی مدد کے لیے سامان و رقم جمع کرنے کا سلسلہ جاری. اہل خیر حضرات کو آگے آنے کی اپیل. ضلع جمعیت علماء ذمہ دار. نئے ضلع سول جج کی حیثیت سے رما دیوی نے لیا اپنے عہدے کا جائزہ. اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب. رشوت ستانی کے لیے عوام آگے آئے. ڈی ایس پی اے سی بی روی کمار. عوام کی شعوری کے سبب ایک اور رشوت خور آفیسر چڑھا اے سی بی کے ہتھے. بودن سی آئی کو رشوت لیتے ہوئے اے سی بی روی کمار نے دھر دبوچا. بودن شہر کے پوسٹ آفس کے پاس سدرشن گوڈ نامی شخص نے ساجد کو پلاٹ فروخت کرنے کے بعد کہا کہ فروخت کرنے کی قیمت کو نہ بتا کر کم قیمت میں پلاٹ کو فروخت کرنے کے تعلق سے ان کے بھائی کے بچوں کو واقفیت کرنے کے لیے کہنے پر ساجد کی جانب سے انکار کرنے پر سدرشن گوڈ نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے حملہ کر کے پولیس اسٹیشن میں ساجد کے خلاف کیس درج کرتے ہی ساجد کی موٹر سائیکل کو تحویل میں لینے کے بعد دینے کے لیے گزارش کرنے سے سی آئی راکیش نے ساجد پر کیس درج کرنے کا بہانہ تیار کر ایک سیل فون اور رقم مطالبہ کرنے پر ساجد نے اے سی بی عہدیداران سے رابطہ کر حال حقیقت سے واقف کروایا اور ساجد کی مدد سے اے سی بی ڈی ایس پی روی کمار نے سی آئی راکیش کو دھر دبوچا اور تمام اشیاء کو ضبط کرتے ہوئے مقدمہ درج کیا. اور انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ رشوت ستانی کے لیے آگے آنے ان سے رابطہ کرنے کی اپیل کی. అతను బోధనకు సంబంధించి ఒక ప్లాట్ విషయంలో సుదర్శన్ గౌడ్ అనే వ్యక్తితో మాట్లాడిపోతే అతను తనతో మేనేజ్ చేసి మాటల గొడవ వచ్చి మేనేజ్ చేసి అతను బుల్లెట్ గుంజుకున్నాడని చెప్పేసి బోధన పోలీస్ కాంప్లైంట్ ఇచ్చినాడు. ఆ కాంప్లైంట్ ఇచ్చిన తర్వాత లోకల్ పోలీస్ యాక్షన్ తీసుకున్నారు. ఆయన బుల్లెట్ మోటార్ సైకిల్ కూడా ఇవ్వడానికి మరి మిగతా కేసులు పెట్టకుండా వేధించుకోవడానికి సిఐ మన రాకేష్ కుమార్ అనే వ్యక్తి 50,000 ప్లస్ ఒక మంచి ఫోన్ శాంసంగ్ కానీ ఐఫోన్ కానీ తెమ్మని చెప్పడం జరిగింది. రేపు ఫోను డబ్బులు ఇవ్వడం ఏం తప్పు చేయకుండా కానీ నా మీద హరాస్మెంట్ చేస్తూ నా బుల్లెట్ మోటార్ సైకిల్ ఇవ్వట్లేదని చెప్పేసి ఆ బాధ్యత మాకు ఏసీబీ కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. దాని మీద కేసు రిజిస్టర్ చేసుకొని ఎంక్వైరీ చేసి ఈరోజు డబ్బులు సెల్ ఫోన్ తీసుకుంటున్నా రాకేష్ ఇన్స్పెక్టర్ గారిని పట్టుకోవడం జరిగింది. ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یوم پیدائش تقریب پر ان کی تصویر پر پھول مالائیں ڈال کر خراج عقیدت پیش کیا.
سابقہ وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 145ویں یوم پیدائش تقریب کا سرکاری طور پر اہتمام عمل میں لایا گیا۔ اس تقریب میں ضلع کلکٹر نظام آباد نارائن ریڈی نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کی تصویر پر پھول مالائیں ڈال کر بھرپور خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ان کی خدمات کو ملک بھر کی عوام یاد رکھے گی۔ ہر سال 31 اکتوبر کو سابقہ وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یوم پیدائش تقریب پورے ملک میں سرکاری طور پر منائی جاتی ہے اور ان کی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا జాతా ہے۔ గొప్ప కవి వాల్మీకి మహర్షి యొక్క జన్మదినాన్ని కూడా జరుపుకుంటున్నాం। ముఖ్యంగా మనకు కోవిడ్ ఉండడం వల్ల ఎక్కువ మంది కాకుండా కేవలం తక్కువ పెద్ద ఎత్తున జరుపుకోవాల్సిన కార్యక్రమం, కానీ కోవిడ్ ఇష్యూస్ వల్ల మనం ఈ విధంగా ఇంటర్నల్గా చేసుకుంటున్నాం। ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏకాదివ శుభాకాంక్షలు, అదేవిధంగా మహర్షి వాల్మీకి యొక్క జన్మదిన శుభాకాంక్షలు। ఇక్కడ ముందుగా మనం మహర్షి వాల్మీకి తీసుకుంటే మహర్షి వాల్మీకి యొక్క జీవితాన్ని ఒకసారి మనం అడవిలో బాటసాలను దోచుకుంటూ ఒక దొంగగా కాలం గడుపుతూ వాటి ద్వారా వచ్చిన సొమ్ముతో తన యొక్క కుటుంబాన్ని తాను పోషించుకుంటున్న వ్యక్తి। शहर की तारीख में पहली बार ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर एमएसओ की जानिब से ब्लड डोनेशन का कामयाब एहतिमाम। शहर के कई मौजिज़ अशखास ने दिया अपने खून का दिया। वो नौजवानों की बड़ी तादाद ने सरकार की शान में दिया अपने खून का दिया। एमएसओ मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यूनिट निजामाबाद की जानिब से इस बार ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया ताकि खून की अदम दस्तयाबी के सबब होने वाली अमवातों में कमी लाई जा सके। वाज़ेह है कि कब्ल में भी एमएसओ की जानिब से हर साल ब्लड ग्रुप टेस्टिंग कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाता था, जिसकी जमाशुदा डेट की मदद से हंगामी हालात में खून का अतिया किया जाता है और इस बार एक कदम आगे आते हुए जिले सरकारी हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के इश्तिराक करते हुए खून का अतिया कैंप का शहर के अगलती इलाके में पहली बार इस नोयत का एहतमाम किया गया, जिसमें कई नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सरकारी दो आलम की निस्बत से अपने खून का अतिया दिया। इस कैंप में मेमन कमेटी जिम्मेदार हरीश जिंदल, मजलिस कॉर्पोरेटर अली बागबान, मोहम्मद मुस्तहसिन, टीआरएस कायद सनाउल्ला, वो सारा फाउंडेशन सदर मोहम्मद साबिर, मस्जिद गरीब नवाज सदर अहमद रजा ने पहुंचकर अवाम की तरगीब के लिए अपने खून का अतिया दिया। इसी तरह एमएसओ सदर अराकी ने भी अपने अजीज व अकारिब के हमरा खून का अतिया दिया, जो अब तक की तारीख का काफी बड़ा कैंप साबित हुआ, जिस पर जिले सरकारी हॉस्पिटल आरएमओ डॉक्टर फरीदा व इनके अमले ने भी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर एमएसओ प्रोग्राम जिम्मेदार मोहम्मद शाहिर अहमद, शमशेर, सोहेल, आरिफ, सिद्दीक, नवाज रजा, इमरान व दीगर ने अपनी बेलूस खिदमात अंजाम दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आपको मालूम है, आप तमाम को मालूम है, जश्न ईद मिलादुन्नबी का मुबारक महीना है, अच्छा सा दिन है ईद मिलादुन्नबी का। इसी पेश नज़र एमएसओ की जानिब से जो ब्लड डोनर प्रोग्राम रखा गया है, बहुत अच्छा काम है और मैं तमाम ही लोगों से अपील करता हूँ कि ब्लड डोनेट करें, अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये प्रोग्राम किंग पैलेस फंक्शन हॉल में रखा गया है। एमएसओ को मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एमएसओ की जानिब से जो प्रोग्राम हुआ, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम हुआ है। इस प्रोग्राम की मैं हमेशा ख्वाहिशमंद रहा हूँ और ऐसे प्रोग्राम बार बार होने चाहिए। एक माँ अपने बच्चे को बचा नहीं सकती, मगर एक ब्लड देने वाला एक आदमी को बचा सकता है। तो ये हमारे अली भाई की सदारत में और ईशान भाई एमएसओ के जो है प्रेसिडेंट है, उनकी सदारत में हुआ है। बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम हुआ है और मैं आप सभी भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि बार बार ऐसे प्रोग्राम करें और जो है ऐसी दिलचस्पी मिले, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने तो इस्लाम को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। हम तो एक थोड़ा सा खून दे रहे हैं, इसलिए हमको चाहिए ऐसे प्रोग्राम बार बार करते हैं। सलाम अलैकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, एक निज़ामाबाद में तहरीक है जिसका नाम एमएसओ की जानिब से रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन ब दिन हर एक नया काम लेकर आती है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर इन्होंने खून का अतिया का एहतमाम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलामान रसूल के लिए बहुत बेहतरीन तोहफ़ा है
یہ خون ہمارا نہیں ہے بلکہ کسی کی زندگی انسانیت بچانے کے لیے خون استعمال ہوتا ہے، اور اس میں کوئی دھرم استعمال نہیں ہوتا ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی، تمام آپس میں ہم لوگ بھائی ہیں الحمدللہ سے۔ یہ خون کو کسی ہندو بھائی کو بھی لگتا ہے، مسلم بھائی کو بھی، جتنے سکھ عیسائی تمام بھائی کو یہ خون استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ہم لوگ امن و شانتی چاہنے والے ہیں، اور یہ تنظیم اور تحریک کی طرف سے یہ بہت بڑا پیارا ایک اہتمام کیا گیا ہے کہ خون کا عطیہ دینے کے لیے الحمدللہ، اور میری جتنی آواز جا رہی ہے یہ ہر سال الحمدللہ MSO ہر سال یہ خون کا عطیہ رکھتی ہے، انشاءاللہ جتنا تک یہ کوئی ویڈیو پہنچے گا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پھر آئندہ سال انشاءاللہ ارادہ کریں کہ سرکار کی بارگاہ میں کم سے کم اس خون کا عطیہ تو خود دینے کے لائق تو نہیں ہے کہ اللہ پروردگار ہم کو ہدایت دیا کہ ہم اس لائق بنے کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں، الحمدللہ آپ سے گزارش ہے کہ الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس خون کا عطیہ دے کر اپنی کچھ تو بھی نیکی اور اعمال میں اضافہ کریں۔ السلام علیکم۔ حیدرآباد سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے جمعیت علماء پیش ضلع جمعیت علماء کی جانب سے بھاری مقدار میں ضروری اشیاء جمع۔ جمعیت ذمہ داران کی دن رات محنت کے سبب مختلف منڈلز میں امداد کا سلسلہ جاری۔ ہر فرد حیدرآباد سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے آئے، ضلع جمعیت علماء ذمہ دار مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی و مولانا سامی کی اپیل۔ جمعیت علماء ہند شاخ نظام آباد کی جانب سے حیدرآباد سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے نہ صرف ضلع سطح بلکہ ریاستی سطح پر بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں، اور ریاستی جمعیت کے اعلان پر گزشتہ کئی یوم سے نظام آباد جمعیت علماء کے تمام صدر و اراکین ضلع کے مختلف منڈلوں کا دورہ کرتے ہوئے حیدرآباد سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے ہر طرح کی مدد جمع کر رہے ہیں، جن میں چاول، آٹا، کپڑے، روزمرہ ضروریات کی اشیاء و رقم شامل ہے۔ اسی طرح آج نندی پیٹ و بھیمگل منڈل جمعیت علماء ذمہ دار حافظ عبدالرشید اور حافظ جمیل کی قیادت میں ضلع دفتر تک امدادی سامان و رقم پہنچائی گئی۔ اس موقع پر مولانا سید سمیع اللہ وہ مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی نے کہا کہ سیلاب کے بعد حیدرآباد کے عوام کئی مسائل سے دوچار ہے، اور ایسے موقع پر ہمیں آگے آنے کی کافی ضرورت ہے، اور جمعیت کی جانب سے حیدرآباد میں حافظ پیر شبیر صاحب کی قیادت میں بلا لحاظ مذہب و ملت امداد جاری ہے، اور ضلع جمعیت کی جانب سے جمع شدہ رقم و امدادی سامان بھی اس منگل کو حیدرآباد جمعیت کے ایک وفد کے ہمراہ بھیجا جائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی امداد کے لیے رقم جمع کرنا چاہتے ہیں تو 2 دن کے اندر دفتر جمعیت علماء بودھن روڈ پر جمع کرا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جمعیت علماء ضلع نظام آباد کی اپیل پر شہر حیدرآباد میں بارش اور سیلاب سے متاثرین کی امداد کے لیے، ان کی بازآباد کاری اور راحت رسانی کے کاموں کے لیے الحمدللہ پوری جمعیت علماء ضلع نظام آباد کے اندر متحرک اور فعال ہو چکی ہے، اور مختلف اعتبار سے ان کی امداد اور تعاون کی شکلیں یہاں پر بنائی جا رہی ہیں، جن میں مالی رقم بھی الحمدللہ 2 سے 2.5 لاکھ روپے ہمارے پاس جمع ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اشیاء کی شکل میں نئے کپڑے، چاول، دال اور بہت سارے سامان جو قابل استعمال ہوں، ان سامان کا ایک گاڑی میں لے جا کر ایک وفد کے ذریعے جناب الحاج حافظ پیر شبیر صاحب کے حوالے کیا جائے گا، اور انشاءاللہ جن جن لوگوں نے بھی اس حوالے سے جمعیت علماء کا تعاون کیا اور اپنے دینی بھائیوں کے امداد اور راحت رسانی کے لیے آگے بڑھ کر مالی اعتبار سے یا اشیاء کے اعتبار سے انہوں نے تعاون کیا، ہم ان کے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بڑے ہی ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کے اس تعاون کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ منگل کے دن یہاں سے جمعیت علماء ضلع نظام آباد کا ایک وفد حیدرآباد جائے گا، اور یہ سارا سامان وہاں حوالے کر کے واپس آئے گا۔ اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو احباب بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ ان 2 دنوں کے اندر، اتوار اور پیر کے اندر جمعیت علماء کے آفس پر پہنچ کر اپنا تعاون جمع فرمائیں۔ آج نندی پیٹ سے حافظ عبدالرشید صاحب، اور گزشتہ 2 دن پہلے بھیمگل سے حافظ جلال صاحب اور دیگر منڈلوں سے بھی مالی رقم ہمارے پاس پہنچ چکی ہے، اور بڑی تعداد میں چاول کا ذخیرہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تقریباً 5-6 کنٹل چاول بھیمگل سے آیا ہوا ہے، اور 10 کنٹل ابھی مزید اسٹاک میں رکھا ہوا ہے، اور اسی طرح نندی پیٹ سے 5 کنٹل چاول اور استعمال کے لیے کپڑے، نئے کپڑے، ساڑیاں ہیں جس کے اندر، اور پینٹ شرٹ ہے، اور چھوٹے بچوں کے لیے بھی کپڑے ہیں، یہ ہمارے پاس جمع ہے۔ انشاءاللہ منگل کے دن یہ سامان پہنچایا جائے گا۔ شہر نظام آباد کلکٹر سی نارائن ریڈی نے ماکلور منڈل موزے ڈکمپلی میں واقع دھان خریدی مرکز کا لیا جائزہ۔
शहर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बरोज हफ्ते को माकलून मंडल मौजे डीकम्पली में वाक़े धान खरीदी मरकज का मुआयना करते हुए कहा कि धान की खरीदी में तेजी लाने के साथ सिर्फ जुम्मा के रोज जिले सतह पर 15,000 मेट्रिक टन खरीदी करते हुए 1,13,600 मेट्रिक टन धान को मिल को रवाना करने के लिए कहते हुए आज मजीद 18,000 मेट्रिक टन धान की खरीदी करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मौसम बारिश के तहत धान के जखीरे को हासिल करने के लिए 9 लाख टन धान को हासिल करने का मकसद बनाते हुए इसमें 7 लाख टन धान का जखीरे को जिले के 445 खरीदी मरकज की कीमत हासिल कर 247 राइस मिल जारी की गई। हर खरीदी मरकज के पास धान के जखीरे की जांच कर मिल को रवाना करने के लिए AEO का इंतखाब अमल में लाए जाने का इंकशाफ किया। నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఇప్పటికే ధాన్యం కొనుగోలు చాలా స్పీడ్గా జరుగుతూ ఉంది। నిన్న ఒకటే మనం జిల్లా వ్యాప్తంగా 15,000 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని మనం కొనుగోలు చేయడం జరిగింది। ఈరోజు దాన్ని 18,000 మెట్రిక్ టన్నులు కొనే విధంగా ముందుకు సాగుతూ ఉన్నాం। అంతే ధాన్యాన్ని అంటే సుమారుగా నిన్న 13,600 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని ఈవెన్ మిల్లులో పంపించి తిప్పడం కూడా జరిగింది। మిగతా వాటిని ఈరోజు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వస్తుంది। సో జిల్లా వ్యాప్తంగా పండిన వరి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి 445 కేంద్రాలను మేము ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాము। అదేవిధంగా వాటికి తగ్గట్టుగా సుమారుగా 247 మిల్స్ మేము ఈ యొక్క ధాన్యాన్ని పంపించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक वेलपुर मार्केट कमेटी चेयरमैन चिन्ना रेड्डी ने बालकुंडा मंडल के किसान नगर मार्केट में मकई खरीदी मरकज का इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक बालकुंडा मंडल के किसान नगर मार्केट यार्ड में बरोज हफ्ते को वेलपुर मार्केट कमेटी चेयरमैन कोटला चिन्ना रेड्डी ने वाइस चेयरमैन वेम्पली चिन्ना बाल राजेश्वर TRS मंडल के सदर बदम प्रवीण रेड्डी मंडल जरिए अहदेदार महेंद्र रेड्डी और ANM डायरेक्टर्स के हमरा मकई खरीदारी मरकज का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि किसान दलालों के बातों में आकर नुकसान न उठाने के लिए हुकूमत की जानिब से तयशुदा कीमत के तहत PSCS DCMS और मार्कफेड के जरिए मकई खरीदी करते हुए किसानों को 1,850 रुपये अकल तरीन इमदादी कीमत अदा करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में वाइस MPP श्रीकांत यादव, हल्के समन्वय कमेटी मेंबर दासरी वेंकटेश, TRS कायदीन लिंगा गौड़, रायतु समन्वय समिति मंडल कोऑर्डिनेटर नागुलपल्ली राजेश्वर, सोसाइटी वाइस चेयरमैन वेम्पल्ली पेद्दा बाल राजेश्वर, डायरेक्टर नसैया सामा महेंद्र रेड्डी, राजेश्वर रेड्डी, AMC सेक्रेटरी भारती, MPTC मेंबर रामराज गौड़, कन्ना पोशेट्टी, मामड़ी राकेश, गंगाराम व दीगर ने शिरकत की। जिले एडिशनल कलेक्टर यादी रेड्डी ने मुतहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी के हमरा जिले कामरेड्डी SS नगर मंडल के अडलूर एला रेड्डी सोसाइटी के अहाते में धान खरीदी मरकज का इफ्तिताह अमल में लाया। मुतहदा जिले निजामाबाद पोचराम भास्कर रेड्डी के हमरा जिले कामरेड्डी SSC नगर मंडल के एडलूरी इला रेड्डी सोसाइटी के हाथे में धान खरीदी मरकज का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना के वजीर आला की जानिब से किसानों को अपनी काश्तकर्दा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान दुश्वारी को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत में धान खरीदी मरकज का क़याम अमल में लाकर किसानों को राहत पहुँचाने का जिक्र करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत के तहत BJP के ज़रिए इख्तियार रियासतों में मौजूद किसानों को रायतु बंधु और रायतु बीमा ना देने का इजहार करते हुए कहा कि हमारे वज़ीर आला KCR को तेलंगाना के किसानों से लगाव का पता चलता है। इन्होंने कहा कि तमाम किसान अपनी पैदावार को फरोख्त करते वक्त उजलत ना करें और ना ही किसी दरमियानी अफराद के झांसे में आकर नुकसान ना उठाने के लिए कहते हुए इन्होंने राइस मिल मालिकीन को भी किसानों की पैदावार खरीदते वक्त हरासा ना करने की हिदायत दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती का जोश खरोश के साथ एहतिमाम। पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया का पुलिस ओहदेदारों के साथ एकता रैली। हिंदुस्तान के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश के मौके पर कौमी एकता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश पर इनकी खिदमत भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया और पुलिस ग्राउंड से NTR चौराहा तक, पुलिस कमिश्नर ऑफ LIC बिल्डिंग से पुलिस हेडक्वार्टर तक पुलिस की जबरदस्त एकता रैली निकाली गई। इस प्रोग्राम में ARDCC श्री N भास्कर, एडिशनल DCP विश्वनाथ, AR होमगार्ड्स के नौजवान और पुलिस के ओहदेदारान ने शिरकत की। सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं
राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देने का तत्वनिष्ठा से संकल्प लेता हूँ। कमांडेंट एनवी सत्य श्रीनिवास राव की सदारत में 7th पुलिस बटालियन डिचपल्ली में यूनिटी डे के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल 145वीं यौम पैदाइश तकरीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। रियासत तेलंगाना की 7th पुलिस बटालियन ने डिचपल्ली में यूनिटी डे के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर कमांडेंट एनवी सत्य श्रीनिवास राव की निगरानी में 7th बटालियन परेड ग्राउंड के पास शानदार पैमाने पर मुनक्किद करते हुए इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे पर फूल मालाएं पहनाते हुए खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि वो इंग्लैंड से बटालियन का सर्टिफिकेट हासिल कर बाबा कौम महात्मा गांधी के जेर निगरानी अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ चलने वाली तहरीक में शामिल होने के लिए कहते हुए आजादी को हासिल करने के बाद इन्होंने उमूर दाखिले के ओहदे का जायजा हासिल कर तमाम तरीन खदमात अंजाम देने का इंकशाफ किया। रियासत में कोरोना के 1445 नए केस, 6 अमवात। तेलंगाना में गुज़िश्ता घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1445 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 6 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,38,632 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,336 हो गई। जीएचएमसी के हुदूद में 286 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद 19, कोत्तागुड़म में 90, जगतियाल 35, जनगांव 25, भोपालपल्ली 21, गदवाल 10, कामारेड्डी 22, करीमनगर 65, खम्भम 77, आसिफाबाद 7, महबूबनगर 28, महबूबाबाद 19, मंचियाल 18, मेदक 22, मलकाजगिरी 122, मलघू 22, नागर कर्नूल 23, नलगोंडा 102, नारायणपेट 4, निर्मल 22, निजामाबाद 18, पेद्दापल्ली 25, सिरसिला 26, रंगारेड्डी 107, संगारेड्डी 27, सिद्दीपेट 43, सूर्यापेट 29, विकाराबाद 22, वनपर्ती 21, वरंगल रूरल 17, वरंगल अर्बन 53, भुवनेश्वर 18 केसेस दर्ज हुए। मक्का मुकर्रमा में कार मस्जिदुल हराम के गेट से टकरा गई। मक्का मुकर्रमा में एक तेज रफ्तार कार मस्जिदुल हराम के गेट से टकरा गई, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तलात के मुताबिक कार में एक सऊदी शहरी सवार था और ये वाक़या जुम्मा की रात 10:30 के करीब पेश आया। हादसे के वीडियो में देखा जा सकता है कि ये गाड़ी सड़क पर मौजूद रुकावट से टकराती हुई और इसे उबूर कर गई। ड्राइवर गाड़ी रोकने के बजाय इसे चलाता रहा, जिसके नतीजे में कार मस्जिदुल हराम के जुनूबी हिस्से में वाक़े एक बाहरी दरवाजे से टकरा गई। पुलिस ने हादसा करने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। जिले निजामाबाद बालकोंडा हल्का असम्बली मोड़ताड़ टीआरएस पार्टी के सदर कलेड़ा एलैया के हाथों इस्तीफादा कुनिनगान में सीएम रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। जिले निजामाबाद बालकोंडा हल्का असम्बली मंडल के मुकाम पर मोड़ताड़ टीआरएस पार्टी दफ्तर में मंडल टीआरएस पार्टी के सदर कलेड़ा एलैया की सदारत एमपीपी शिवलिंगु श्रीनिवास, जेडपीटीसी बदम रवि, वाइस एमपीपी पालियम श्रीनिवास, कमरपल्ली जरे मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन पापाई पवन, मंडल के सरपंच और एमपीटीसी ने मुस्तहिक खानदानों को सीएम रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मंडल पार्टी के सदर कलेड़ा एलैया ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सीएम रिलीफ फंड गरीबों के लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं। आज कई मुसीबत में मुब्तला और परेशान गरीब अपनी कम पुरसी की दास्तान बजरिए दरख्वास्त पेश करते हुए इससे इस्तीफादा कर रहे हैं और इलाज व मुआलजे के बाद एक नई जिंदगी पा रहे हैं। रियासत का हर तबका हुकूमत की हमदर्दाना कारकर्दगी से खुश है और हुकूमत भी अवाम के मकासद के तहत अमली इक़दामात करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रियासती वजीर इमारत शौरा वेमला परेशान रेड्डी की जानिब से अहम दिलचस्पी लेते हुए सीएम रिलीफ फंड के तहत इस्तीफादा कुनिनगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाते हुए गुर्बतज़दा अवाम की जिंदगियों का तोहफा करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में सरपंच
लक्ष्मण गड़म चिनारेड्डी, प्रसाद देवन्ना, MPTC अशोक, गज्जाला सुधाकर, सेटपल्ली डॉक्टर श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। NLM अहदेदार बाला मुरली ने मरकज व रियासती हुकूमत की जानिब से जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। रेंजल मंडल मौजे कंदाकुर्ती में मरकज व रियासती हुकूमत की जानिब से जारी तरक्याती कामों को मरकजी ग्रुप के मेंबर NLM अहदेदार बाला मुरली वंशी ने मौजे में जारी तरक्याती कामों से ताल्लुक रखने वाले रिकॉर्ड का सरसरी तौर पर मुआयना करते हुए तनक़ी के तहत BC शमशान घाट किसानों की जानिब से तामीर करदा प्लेटफॉर्म, कंपोस्ट शेड और रायतु वेदिका, महिला संगम, आंगनवाड़ी मरकज के साथ मिनी बैंक, अर्बन हेल्थ सेंटर का जायजा लेते हुए मौजे में तामीर करदा रायतु वेदिका भवन का मुशाहिदा कर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ सरपंच मिर्जा कलीम बेग, पंचायत राज AE लिखिता, MPO शरद चंदर, APM चिनैया व दीगर ने शिरकत की। धमाका का अशिया रखना पड़ा भारी। कामारेड्डी में धमाका का अशिया घर में रखने के सबब पेश आया हादसा। महकमे पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करते हुए किया गया कार्रवाई का आगाज। जिले कामारेड्डी बिकनूर मंडल मौजे जनगमपल्ली से ताल्लुक रखने वाले पुल्लूरी सिद्दी रामलू ने अपने घर में इम्तना आयद करदा धमाका का अशिया महफूज रखने की बिना पर अचानक फूट पड़ने के बायस घर मुनहदिम हो गया। तफसीलात के मुताबिक मुकामी अवाम की जानिब से इत्तला देने पर बिकनूर इसाइल इमादरी मौके वारदात पर पहुंचकर मुकाम पर धावा करते हुए इम्तना आयद करदा धमाका का अशिया को हिरासत में लेकर पुल्लूरी सिद्दी रामलू को तहवील में लिए जाने का इंकशाफ किया। పుల్లూరు సిద్ధరాములు అని చెప్పేసి ఎస్సీ కాలనీలో ఉంటాడు. ఇతని ఇంట్లో ఏదో బ్లాస్ట్ అయిందని చెప్పేసి బాంబు బ్లాస్ట్ అయిందని చెప్పేసి చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి శబ్దం రాగానే వాళ్ళంతా భయపడిపోయి మనకు ఒక దరఖాస్తు ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని కేసు రిజిస్టర్ చేసినాము. దాన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం. ఖాళీగానే ఉంటుండు. గతంలో వేరే కేసులలో ఉంటే ఇప్పుడు ఖాళీగానే ఉంటుండు. భార్య పిల్లలు కూడా ఎవరు సింగిల్గానే ఉంటాడు. ఈ అడవి పందుల కోసము ఏదైతే చిన్న బాంబులాగా తయారు చేసి అవి అడవి పందులు పెట్టడం కోసం అన్నట్లు లెక్క తయారు చేస్తున్నట్లు మనకు దరఖాస్తులో చెప్పడం జరిగింది। जिले सिविल जज की हैसियत से रमा देवी ने लिया अपने ओहदे का जायजा। आज नए जिले सिविल जज की हैसियत से रमा देवी ने अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर मुकदमे को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की जाएगी और अवाम की बेहतरी के लिए हर हफ्ते लोक अदालत का एहतमाम किया जाएगा। इसी तरह मोबाइल वैन के जरिए दही इलाकों में भी जाकर मुकदमात को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। इस मौके पर वकीला ने इनको मुबारकबाद देते हुए जिले में खैर मकदम किया। నమస్కారం, నేను ఈరోజే ఇక్కడ పల్లి బాధ్యత తీసుకోవడం జరిగింది. మరి మనకి ముందుగా ఫస్ట్ నేను వచ్చిన చార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్గా వచ్చేది లోక్ అదాలత్, వర్చువల్ లోక్ అదాలత్. అది ఈ సాటర్డే 7th కమింగ్ సాటర్డే వర్చువల్ లోక్ అదాలత్ నిర్వహించబడుతుంది. అన్ని రకాలైనటువంటి కేసెస్ ఏవైతే సెటిల్మెంట్ చేసుకోగలుగుతామో ఆ కేసెస్ అన్నీ కూడా సెటిల్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रिश्वतखोरी के खात्मे के लिए ACB मुतहरिक। बोधन राकेश CI को रिश्वत लेते हुए DCP ACB ने दर दबोचा। तरगु के नाम पर किसानों को न लूटा जाए। धान खरीदी के दौरान किसानों को गैर जरूरी हरासा करने पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर पहली बार शहर में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का कामयाब इनेकाद। नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए सवाब की नीयत से दिया खून का दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश तकरीब का जिले में पुरजोश एहतिमाम। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी, CP कार्तिकिया व दीगर ने किया तकरीब का एहतिमाम। हैदराबाद सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए जमयत का अहम इक़दाम। मुतासरीन की मदद के लिए सामान व रकम जमा करने का सिलसिला जारी। अहले खैर हजरात को आगे आने की अपील। जिले जमयत उलमा जिम्मेदार।
नए जिले सिविल जज की हैसियत से रमा देवी ने लिया अपने ओहदे का जायजा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।